Lesson integers, we have exercise 1.3. Question number 5. Find the product using properties. In A, 26 multiplied by minus 48 plus minus 48 multiplied by minus 36. इसको सॉल्व करने के लिए we have two ways. Okay. First हम इसको सॉल्व करेंगे multiply then we will multiply then we will do plus. Okay. 26 multiplied by minus 48. 26 multiplied by minus 48. अगर 26 को 48 से multiply करते हैं तो yes, you will get 1248. As we know, plus into minus is minus. Okay. Then minus 48 into minus 36. So what we will do? Minus into minus plus हो जाता है. So you will get positive product. Okay. 48 multiplied by 36, that is 1728. As we know, minus 1248 को हम ऐड करते हैं minus 1728 से. तो what happens? Actually आप 1728 में से इसको निकाल देंगे. तो you will get 480. Okay, this is the answer. Now we can do this sum in another way. Okay, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं. तो what happens? We have minus 48 as common number. 26 and 36, these are two multipliers which they are multiplying with the same multiplicand. Okay, अब हम देखते हैं minus 48. This is the common one. Clear? Plus. Okay, अब हम इसको एक चीज करते हैं, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और यहां पर हम करते हैं 26 plus, because this sign is there, minus 36. Okay, this is the wait. Now what happened? Minus 48 multiplied by 26 plus minus 36 is minus 10. Okay, 48 into 10, your answer will be 480. Okay, so with this property you will do this sum not in this way. Okay, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना है. Yes, for verification, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों के प्रोडक्ट को प्लस कर दीजिए. Then you will get answer 480. Okay, now in next sum, minus 41 multiplied by 102. Now what happened? We can do minus 41 multiplied by 100 plus 2. ब्रेकिंग द नंबर को ब्रेक करना आपने क्लास 3rd में सीखा था, 4th में सीखा था. नाउ द सेम थिंग वी आर डूइंग. ओके, विद नेगेटिविटी. minus 41 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो वी विल मल्टीप्लाई 100 plus 2, that is minus 41 multiplied by 100. Okay, plus minus 41 multiplied by 2. Okay, ये आपने यहां ले लिया और ये आपने यहां ले लिया. Now 41 into 100, 4100. Sign will be minus into plus, that is minus, plus 41 into 2, that is 82, minus 82, minus 4100 plus minus 82. प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो माइनस माइनस विल रिमेन माइनस ओनली, बिकॉज वी आर डूइंग प्लस हियर, नॉट मल्टीप्लिकेशन. सो आंसर विल बी minus 4182. इसको चेक करना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं 102 into 41. ओके, 1 2s are 2, 0 1, 4 2s are 8, 0 4. Your answer is 4182. Clear? The answer is. Now next sum. Students, look this problem carefully. 625 multiplied by minus 35 plus minus 625 into 65. Okay, now 625 and 625 are common? No, this is plus 625, this is minus 620, they are not common. To make these as common one, अगर हम इसे कॉमन करना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन, हम इसकी जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको हम कॉमन करेंगे. अगर यहां पर हमें नेगेटिव करना है इसको 625 को, तो व्हाट वी विल डू, हम 35 को प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे.
तो we can write this like into 35. Okay, 625 into minus 35 or 35 into minus 625 remains same. Okay, plus minus 625 into 65. Now we have this one as common. Okay, so minus 625 multiplied by 35 plus 65. Okay, 35 plus 65 कितना होता है 100. Okay, minus 625 into 100. We know the table of 100. Okay, our answer will be minus 625 and 0 0. This is the answer. कितना फास्ट हमको आंसर मिल गया. अदरवाइज क्या होता, हम इसको कैलकुलेट करते फिर इसको कैलकुलेट करते. With this property you can find the answer or find the product easily. Students, now we will learn and see question number 6 of the exercise 1.3. Okay, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. क्या कह रहे हैं? A certain freezing process, एक freezing process है which requires that room temperature be lowered. जो रूम टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए. कितना? 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा. एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. अब हर आवर में, एवरी आवर इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए. अगर 40 डिग्री अभी है तो 1 आवर बाद कितना होना चाहिए? 40 minus 5, that is 35 degrees Celsius. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो 10 आवर्स बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा. इसे हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पर. ओके, द रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, लोअरिंग कम होना एट द रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा? ओके, तो 10 आवर्स में कितना कम होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस अभी है, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10 आवर्स. ओके, 5 इंटू 10, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 टेंस आर 50 डिग्री सेल्सियस. कितना कम हो गया? 40 माइनस 50, दैट इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आंसर. ये ऐसी बात हुई जब नंबर लाइन पर हम चलते हैं. अगर हम 40 पर हैं और हमें हर आवर में, एवरी आवर में 5 नीचे आना है तो 35, 1 आवर, सेकेंड आवर 30, थर्ड आवर में और 5 कम हो जाएगा. कितना हुआ? 25. फिर फोर्थ आवर में 20, फिफ्थ आवर में 15, सिक्स्थ आवर में 10, सेवेंथ आवर में कितना आ जाएगा? 5. एट्थ आवर में 0 डिग्री सेल्सियस. एंड उसके बाद हमको 0 से नीचे आना है. 9th आवर में -5 एंड 10th आवर में -10 डिग्री सेल्सियस पर आपका रूम टेम्परेचर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, नाउ इन योर एक्सरसाइज 1.3, लुक क्वेश्चन नंबर 8 वेरी केयरफुली बिकॉज इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं. अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट बेचती है वो, WC व्हाइट सीमेंट. कितना प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट ₹8. ओके, ₹8 पर बैग. यही सीमेंट कंपनी लॉस बियर करती है ₹5 का जब वो ग्रे सीमेंट बेचती है. ग्रे सीमेंट लॉस ₹5 पर बैग. ओके, एक सीमेंट में तो वो व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट ले रही है ₹8 का पर बैग में, और ग्रे सीमेंट में उसको लॉस मिल रहा है ₹5 पर बैग. ए आप देखेंगे, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट. कितना बेच रही है? 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट. तो 8 into 3
5000 bags. Okay, और 5000 bags of grey cement. ग्रे सीमेंट का उसको मिल रहा है 5000. क्लियर? बैग बेचने पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? इसमें प्रॉफिट है कि लॉस हो रहा है इसको? क्लियर? अब हम देखते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 3000. 8 3s आर 24. 24,000 is the profit. Okay, this is profit. 5 into 5,000, that is 5 5s are 25,000 is the loss. Loss ज्यादा है कि प्रॉफिट है? लॉस ज्यादा हो रहा है 25,000 and profit लगा है 24,000. So when profit is less than loss, then there is a loss. वहां पर लॉस होता है. तो 25,000 minus 24,000 is equal to ₹1,000 लॉस. क्लियर? यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि अगर वो 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचता है तो 5 रुपीज पर बैग के हिसाब से उसको लॉस होता है टोटल 25,000, और 3,000 बैग बेचता है व्हाइट सीमेंट के 8 रुपीज पर बैग के प्रॉफिट के हिसाब से, तो ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 24,000. बट ओवरऑल क्या होता है? हमने देखा लॉस ज्यादा है तो लॉस में से प्रॉफिट लेस कर देते हैं, तो भी उसको 1000 रुपीज का लॉस बच रहा है. दैट इज ही इज इन लॉस, दैट कंपनी इज इन लॉस. अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं. ओके, सेकंड पार्ट में यू कैन सी दैट इज द बी पार्ट. व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स it must sell to have neither profit nor loss. उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो. If the number of grey bags sold is ₹6,400 or 6,400 bags, अगर वो ग्रे सीमेंट बेचता है 6,400 bags of grey cement, okay, grey cement, तो इसको लॉस हो रहा है 5 रुपीज पर बैग के हिसाब से. क्लियर? देयर इज लॉस. अब उसको व्हाइट सीमेंट कितना बेचना है? व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट कमा रहा है. व्हाइट सीमेंट कितना बेचना है हमें पता नहीं, एक्स बेचना है. ओके, एक्स, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज. तो इस दोनों को अगर हमारा इक्वल करना है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. तो 6400 multiplied by 5 is equal to x multiplied by 8. Okay, now what we will do? We will find out the value of x, that is 6400 multiplied by 5 upon 8. 8 से हम 64 को डिवाइड कर देंगे. 8 8s are 64, that is x is equal to 800 into 5. x is equal to 4,000 bags. Okay, ये आपका आ जाता है. अगर वो 4,000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचता है तो वो इस लॉस को कवर कर लेता है. प्रॉफिट में नहीं आता बट इक्वल हो जाता है. सो देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस इन दिस कंडीशन. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 बैग, दैट इज व्हाइट बैग्स. ओके, व्हाइट सीमेंट.